Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to continue yesterday's topic, that is the significance of educational psychology in the education. Yesterday we had discussed some points how much educational psychology is important for the education system, and in other words we can say education and psychology are the faces of the same coin, two different faces of the same coin. They are closely related to each other, and it is the psychology which helps us to develop. It is the psychology which helps an educator how to develop character, personality, intelligence, and it is the educational psychology which helps us to treat how to treat the children's. Now the another point which we are going to start with this, how educational psychology is important for the education system, and it is the educational psychology which helps us to have a deep relation with the educational curriculum. So we are going to see here where educational psychology and the curriculum. So far as the curriculum and psychology are concerned, educational psychology जो है इसने एजुकेशन में एक नए वी पॉइंट को जन्म दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जितनी भी को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ है, जिसमें हमें आते हैं एक्सकर्शंस, सपोर्ट्स एक्टिविटीज़, ट्रिप्स, एग्जीबिशंस आते हैं, ड्रामाज आते हैं, और भी प्रोग्राम्स हैं जैसे फिल्म शोज़, जैसे डिबेट्स, जैसे डिक्लेमेशन होते हैं, जैसे सिंपोजियम्स होते हैं, या और भी एक्टिविटीज़ आप ले लो, जिस एक्टिविटीज़ से जो हमारे चाहे वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो मेंटल एक्टिविटीज़ हो, इमोशनल हो, सोशल हो, कल्चरल हो, उन सबों को एक इम्पॉर्टेंस है कैरिकुलम में या स्कूल में। तो आजकल जो है को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ जितने भी को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ है, उनको सबसे ज़्यादा जो है एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम जो है कहा जाता है। लेकिन ये सब जो है उनको कहा जाता है इज़ अ मीडियम फॉर द सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स एंड इमोशंस। और जो है अगर हम डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी की बात करेंगे तो इनको एक अहम रोल दिया जाता है इन को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ को। लेकिन ये सब कुछ जो सजेस्ट किया है ये एक ही सिस्टम है, दैट इज़ द एजुकेशनल साइकोलॉजी. इट इज़ द एजुकेशनल साइकोलॉजी विच हैज सजेस्टेड दैट curriculum should be integrated. It is the educational psychology which said that education curriculum should be integrated, flexible, correlated, and child-centered. And it is the educational psychology which says that there should be a variety of co-curricular activities in the schools, because these help us in developing of these little kids, little children. It is the co-curricular activities which are playing an important role, and this viewpoint is only being expressed by the educational psychology. So educational, it is the psychology which says that if you want to develop the personality of a child, it is necessary that there should be the co-curricular activities, or we can say the co-curricular activities can play an important role in the education system, and this we has been introduced by the educational psychology. Number third, psychology and textbook. So far as the psychology is concerned, it is a psychology which have helped the planning of the textbooks. जो planning है textbook की करते हैं, जो लोग textbooks को तैयार करते हैं, ये educational psychology है जो जिसने क्या किया है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है जिसने टीचर्स को या एजुकेटर्स को एजुकेशन टेक्स्ट बुक जो है इनको अट्रैक्टिव करने के लिए क्या किया कि उनको साइकोलॉजी के साथ जोड़ा, कि साइकोलॉजी जो है वो टीचर्स को, एजुकेटर्स को टेक्स्ट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि कैसे टेक्स्ट बुक्स को अट्रैक्टिव बनाया जाए, वेल इलस्ट्रेटेड बनाया जाए, या उनकी जो है उसमें जब भी कोई टेक्स्ट बुक ली जाए तो उस वक्त जो है मेंटल लेवल ऑफ द पीपल जो है उसको कंसिडर किया जाए, या इसको हम कहेंगे कि जो साइकोलॉजी है ये हमें जो है इट एक्ट्स एज अ गुड एड्स टू द लर्नर्स के लिए ये गुड एड है। तो इस तरह से जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टेक्स्ट बुक्स को डेवलप करने में, प्लान करने में। तो इस तरह से, और इसके बाद अगर हम देखेंगे साइकोलॉजी एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, तो जहाँ पर इस एजुकेशनल साइकोलॉजी को हम देखेंगे तो ये साइकोलॉजी जो है
एक स्टेट इसमें आता है कि बच्चे की जो एटीट्यूड है, हमें जो है एजुकेशन साइकोलॉजी है जो हमें इसकी नॉलेज देते हैं एक एजुकेटर को, कि जो इसका लर्नर होता है इसका एटीट्यूड क्या है, इसके इंटरेस्ट्स क्या है, उसका पोटेंशियलिटीज़ क्या है, उसका प्रॉपर्चुनिटीज़ क्या है। तो इसमें जो है एक एजुकेटर को कि इसको समझाने के लिए उसको कैसे हम मोटिवेट करेंगे एक बेस्ट एजुकेशन की तरफ से, तो प्रोवाइड ए बेस्ट एजुकेशन। तो ये एजुकेशन साइकोलॉजी है विच हेल्प्स अस कि हाउ वी आर गोइंग टू teach these students and what method should be used in order to help in order to educate, in order to teach the students, in order to show, in order to provide the learning process जो है इसको हम कैसे बेस्ट मोड में, या इसको हम कैसे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट या इसको हम कैसे लर्नर सेंटर जो है वो बनाएंगे। तो इस तरह से जो है इसमें हमें कौन से मेथड इस्तेमाल करने हैं, जिसमें हमें आते हैं कि ये एजुकेशनल साइकोलॉजी है विच शोज दैट इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ दीज मेथड्स लाइक प्रोजेक्ट मेथड, हेरास्टिक मेथड, मॉन्टेसरी मेथड, प्ले वे मेथड, these are the methods which are psychologically sound, which are the psychology which have a direct impact on the education of a child, which have a direct impact on the how the learners जो है learners कैसे इसको लर्न कर सकते हैं। ये मेथड जो है इसका खास जो है असर है इन बच्चों पे होता है। तो इन मेथड्स को हमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो ये चीज़ जो है हमें सिखाते हैं, ये एजुकेशन साइकोलॉजी है विच हेल्प्स अस कि आपको अगर एजुकेशन बेटर वे में प्रोवाइड करना है बच्चों को या लर्नर्स को, तो आप इन मेथड्स को, किन मेथड्स जो है टीचिंग के लिए कौन कौन से मेथड्स आप इस्तेमाल करेंगे जिससे बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा असरात पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा असर दिखा सकता है। तो ऐसे मेथड्स जो है दैट इज़ द एजुकेशनल। इसके बाद आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी और साइकोलॉजी एंड ऑडियो विजुअल एड्स। इट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी विच expresses that, which helps that if you are going to contribute, is the contribution of educational psychology, that if a teacher wants a successful class, he wants a successful classroom teaching, he should use audio visual aids, because audio visual aids is making educational system, educational learning easy, interesting and effective। अगर हम एजुकेशन को देखेंगे तो साइकोलॉजी जो है ये साइकोलॉजी की कंट्रीब्यूशन है कि एक एजुकेशनल टीचिंग को अगर आप मोस्ट अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप ऑडियो विजुअल एड्स को इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑडियो विजुअल एड्स की वजह से लर्निंग जो है वो ईजी हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है। इसके बाद है साइकोलॉजी एंड इनोवेशंस। अगर आप इनोवेशन को देखेंगे, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी है जिसने कहा कि इसकी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन सिस्टम में। अगर आप देखेंगे कि आइडियाज़ कि हम टीचिंग लर्निंग को कैसे इम्प्रूव करेंगे, तो उसने कहा एक्टिविटी सेंटर्ड टीचिंग आप बनाइए, डिस्कशन मेथड आप यूटिलाइज कीजिए, प्ले वे मेथड आप यूटिलाइज कीजिए, माइक्रो टीचिंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। ये ऐसी इनोवेशंस है जो हमें सिखा रहे हैं कि हम कैसे एक बेटर एजुकेशन सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। तो ये साइकोलॉजी है, एजुकेशन साइकोलॉजी की कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमें किन किन एजुकेशन सिस्टम्स को आगे बढ़ाना है। उसके बाद है एजुकेशन एंड डिसिप्लिन। एजुकेशनल साइकोलॉजी है कि बच्चे की जो प्रॉब्लम्स है डिसिप्लिन के हिसाब से अगर देखें कि बच्चे के प्रॉब्लम क्या है, कैसे इसके बिहेवियर को ठीक किया जाए, कैसे इसके फ्रस्ट्रेशंस, रिप्रेशंस जितने भी है या मॉल एडजस्टमेंट इस बच्चे की है, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें बताती है कि आपको जो प्रॉब्लम्स है बैकवर्ड, डिलिकेंट, हैंडीकैप्ड, गिफ्टेड चिल्ड्रन, इन सबों की जो प्रॉब्लम्स है उनको आप कैसे डील करेंगे। ये एजुकेशनल साइकोलॉजी है विच हेल्प्स एस हाउ यू आर गोइंग टू प्लेजर एंड पेन, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, प्रॉब्लम, प्रेज एंड ब्लेम शुड बी जुडिशली यूज्ड। आप किस जगह किस टर्म को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है साइकोलॉजी एंड टाइम टेबल। ये एजुकेशनल साइकोलॉजी है जो हमें बताती है कि हर सब्जेक्ट को सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर होना चाहिए। जैसे मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए, या इसके लिए ये भी है कि मैथमेटिक्स अगर पढ़ाना है तो मॉर्निंग में पढ़ी जाए, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग जो है कि किस मैथमेटिक्स, इंग्लिश जो है या इनको क्या है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है जो हमें बताया कि किस टाइम किस सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहिए और कैसे पढ़ाना चाहिए और किस तरीके से पढ़ाना चाहिए और किस टीचर को पढ़ाना चाहिए। इसी के साथ साथ ये एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये टीचर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी ज़रूरी है, टीचर के लिए भी ज़रूरी है कि वो इसमें मेथड्स ऑफ टीचिंग जितने भी होंगे तो उसके लिए जो है
एजुकेशनल टीचर के लिए सबसे ज़्यादा पॉविटर अगर एजुकेशनल मशीनरी में देखेंगे तो एजुकेशन सिस्टम जो है सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट जो है वो टीचर पे होता है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है एक टीचर के साथ सिंपैथेटिक अफेक्शन जो है एटीट्यूड जो है वो बच्चे के साथ करना चाहिए। एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें सिखा रही है कि आप बच्चे के साथ टीचिंग प्रोफेशन में बैलेंस इमोशनल लाइफ लेके आप अपने जैसे आप अपने स्टूडेंट्स को सिखाएंगे तो वैसे ही आपके स्टूडेंट्स लर्न करेंगे। तो आपको हर हमेशा एजुकेशन साइकोलॉजी ही सिखा रहे हैं कि कैसे आप में अपने आप में मेथड्स वो टीचिंग मेथड्स बेस्ट टीचिंग मेथड्स या बेस्ट एडिटर्स जो है वो आपको कैसे डेवलप करने हैं। तो उसके बाद आप खुद ब खुद जो है ये एजुकेशनल साइकोलॉजी है जो सबसे ज़्यादा जो है अगर आप देखेंगे तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये इसका सबसे ज़्यादा रोल है एजुकेशन में। तो एजुकेशन साइकोलॉजी जो है अगर हम देखेंगे तो इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर हम देखेंगे तो पेरेंट्स भी इसमें बहुत अच्छा है कि कैसे पेरेंट्स को क्या रोल है, टीचर्स का क्या रोल है, गाइडेंस का क्या रोल है, वर्कर का क्या रोल है, कैरियर मास्टर्स का क्या रोल है, साइको एनालिस्ट्स का क्या रोल है। तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी है जिसकी वजह से आप जो है अगर आप देखेंगे तो बच्चे की जितनी भी इंटरेस्ट होता है उसकी लर्न जो है वो सब कुछ पता चलती है। ना दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो अब हम जो इसके बाद नीड एंड इम्पॉर्टेंस जो थे तो उसके बाद हम देखेंगे कि इस एजुकेशनल साइकोलॉजी की नीड और इम्पॉर्टेंस एक टीचर के लिए कैसी होती है वो हम सुबह पढ़ेंगे इंशाल्लाह।